আপনাদের সামনে এবার যোগীজিকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের বীরভূম সাংগঠনিক জেলার লড়াকু সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি মহাশয়। আমাদের যোগী বাবাকে বরণ করে নিচ্ছেন বীরভূম জেলার লড়াকু সভাপতি শ্রদ্ধেয় উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি মহাশয়। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এবার আমাদের যোগী বাবাকে বরণ করে নিচ্ছেন রামপুরহাট বিধানসভার লড়াকু প্রার্থী, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেন, শ্রদ্ধেয় ধ্রুব সাহা দাদা, যিনি মহাদেবের দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি দিয়ে যোগী বাবাকে বরণ করে নিচ্ছেন। জয় জয় মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, ওম নমঃ পার্বতী পতয়ে, হর হর মহাদেব। এবার মা তারার পুণ্যভূমিতে যোগীজিকে বরণ করে নিচ্ছেন মা তারার মূর্তি দিয়ে আমাদের হাসন বিধানসভার প্রার্থী শ্রদ্ধেয় নিখিল ব্যানার্জি মহাশয়। জয় জয় মা তারা, জয় মা তারা। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে সর্বদা লড়াই করে গেছেন, শ্রদ্ধেয় ধ্রুব সাহা মহাশয় দাদা। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। আজকের এই নির্বাচনী সভায় যারা দেশ বিরোধী, যারা সনাতন বিরোধী, যারা রাষ্ট্র বিরোধী, তাদের হৃদয় কাঁপানোর হিন্দু হৃদয় সম্রাট যোগী আদিত্যনাথজি আজকের এই কর্মসূচির মধ্যমণি, তাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাই। বীরভূমের মাটি, লাল মাটি, তারাপীঠ সহ 5টি শক্তিপীঠের মাটি, এই মাটিতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বীরভূম জুড়ে আজকের যেভাবে অন্যায় অবিচার চলছে, এই নির্বাচনী সভার মাধ্যমে আমরা যখন প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আজকের এই সভা মঞ্চে পার্টির জেলার নেতৃত্ব সহ আমাদের সম্মানিত মঞ্চ, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় জেলা সভাপতি আমাদের উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি দা, উপস্থিত আছেন আমাদের হাসন বিধানসভার প্রার্থী, অগণিত হিন্দু সমাজের হৃদয়ের মণিকোঠায় যার নাম আমাদের প্রিয় দাদা নিখিল ব্যানার্জি। সম্মানিত মঞ্চ, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান সম্ভাষণ জানাচ্ছি। রামপুরহাটে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে আমি মনোনীত, দল আমাকে করেছে, তাই আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে পার্টির কর্মী সমর্থক সকলকে নত মস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি। যেভাবে রামপুরহাটকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এক একটা অঞ্চলে একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে তাদের ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন, এখানকার বিধায়ক যিনি মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি, চুপ করে আছেন। প্রত্যেকটা অঞ্চলে দুধের গায়েদের রাজত্ব বাড়ছে, জিহাদিদের অত্যাচার বাড়ছে। সেই অত্যাচারের সময় ভারতীয় জনতা পার্টিতে হাজার হাজার লাখে লাখে মানুষ আসছে। আজকে রামপুরহাটের এই নির্বাচনী সভায় আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাস দিতে পারিনি, বিভিন্ন কার্যকর্তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারিনি। যেভাবে হাজারে হাজারে মানুষ, পার্টির কর্মী সমর্থক, সনাতনী মানুষ যোগী আদিত্য
রাত জুড়ে আজকের এই সভায় এসেছে। আজকের এই সভা আওয়াজ দিচ্ছে তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সভাতে কোথাও কোনো লোক নাই, চোর ভাইপোর সবাই লোক নাই। এখানে একটা চোর ভাইপো যার হিসাব নির্বাচনের পরে হবে। বিভিন্ন জায়গায় বাগান বাড়ি করে, বাগান বাড়িতে ফুর্তি লাগান, নার্সিংহোম করে অবৈধ ব্যবসা করে ফুর্তি লাগান, সব ব্যবসার হিসাব হবে। তুই কাণ্ডের পরে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে উঠার সময় যাকে বলেছিলেন এই ভাইপোকে যেন আশিস দা না দেখি, আজকে আশিস ব্যানার্জির সঙ্গে কেউ নাই, তাই ভাইপোই ভরসা। ওখানে পিসির ভাইপো, এখানে শেরের ভাইপো, ভাইপোময় বাংলা। এই ভাইপো আজকে আশিস ব্যানার্জিকে বাঁচানোর জন্য রাস্তায় নেমেছে। কোনো লাভ হবে না। অনেক কুকথা বলেছেন, চোরের মায়ের বড় গলা। হিসাব হবে কে কত তোলাবাজ, সেই তোলাবাজের হিসাব হবে। আপনাকে আশিস ব্যানার্জি বাঁচাতে পারবে না, কারণ তিনিও মরে গেছেন। গ্রাম বাংলায় গেছে, প্রত্যন্ত ভোর আমরা গ্রামে গেছি, একদম রামপুরহাট 1 নম্বর মন্ডল আমাদের, সেই প্রান্তিক হিংলো কিংবা ভারকানা কিংবা আমাদের রামপুর কাপিষ্ঠার গ্রামে গেছি। সবাই বলছে আশিস ব্যানার্জি তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। কেউ কোথায় দেখতে পাচ্ছে না। আর উন্নয়ন, উন্নয়ন মাটির 50 ফুট গর্তে লুকিয়ে গেছে, তাই উন্নয়ন হয়নি। বেকার যুবক, আদিবাসী যুবক কোনো কাজ পায়নি। দেউচা পাচাবির নামে যেভাবে একটা শ্রেণীর মানুষকে ওখানকার আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ শামিরুল ইসলাম শুধু দুধের গায়েদের চাকরি দিয়েছে, আদিবাসীদের বঞ্চিত করেছে, উপেক্ষিত করেছে আদিবাসীদের। আদিবাসীদের জল, জঙ্গল, জমি আজকে বঞ্চিত আদিবাসীরা, সেই আদিবাসীদের আওয়াজ হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। আদিবাসীরা লাঞ্ছিত, জল পায়নি, স্বাস্থ্য পায়নি, শিক্ষা বন্ধ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 5700 কোটি টাকা দিয়ে মাদ্রাসা করতে পারছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ডেভেলপমেন্ট করছে। আজ অঙ্গনারী স্কুল বন্ধ, প্রাইমারি স্কুল বন্ধ, স্বাস্থ্য শিবির বন্ধ। এই ব্যবস্থায় আমরা বাংলার মানুষ, রামপুরহাটের মানুষ বলছি বাঁচতে চাই। বিজেপি তাই আমরা বলছি পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। তাই রামপুরহাটের আজকের এই জনজোয়ার প্রমাণ দিচ্ছে আশিস ব্যানার্জি হারছে। এখন সময় হচ্ছে মার্জিনটা কত হবে, 35 না 45, সেই মার্জিনের লড়াইয়ে আশিস ব্যানার্জিকে হারাবে বীরভূমের রামপুরহাটের মানুষ। তাই আমার কার্যকর্তা কর্মী বন্ধুদেরকে নত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ हमारे श्रद्धेय ध्रुव शाह दादा के। अभी वो क्षण आ चुके जो शुभ मुहूर्त पे हम लोग अभी जोगी जी बाबा को सुनने के लिए इतना समय से बैठे हैं सब लोग। तो हम अभी मंच पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को मंच पे कुछ बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। আমাদের রামপুরহাট বিধানসভার 5 পিলার, 5 মন্ডল সভাপতি যোগী বাবাকে তাদের কিছু সম্বর্ধনা দিতে চান। 1 নম্বর মন্ডলে দিলীপ মন্ডল, 2 নম্বর শামচাঁদ মাহাতো, 3 নম্বর উষা পাল, 4 নম্বর ভজহরি মন্ডল, রামপুরহাট নগরের অর্পণ নাগ। সবার জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं सबसे पहले भारत की परम आध्यात्मिक साधना की पीठ मां तारा के इस पावन धरा को और यहां पर स्थित उन पंच तीर्थों को जो भारत की शक्ति के अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है, उन सभी 5 शक्तिपीठों जो जिनकी शक्ति साधना ने वीर भूमि को वीर भूमि बनाया है, ऐसे शक्तिपीठों से आच्छादित वीर भूमि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का, यहां के उत्साही नौजवानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी वीर भूमि के अध्यक्ष श्री उदय शंकर बनर्जी जी, जिला महामंत्री श्री शांतनु मंडल जी, श्रीमती रीता पाल जी, श्री श्याम सुंदर गोराई जी, जिला प्रभारी श्री संदीप नंदी जी, जिला उपाध्यक्ष रतन स्वरूप रतन सिन्हा जी, श्रीमती सुखमनी हेमब्रह्म जी, विधानसभा प्रभारी अतुल चटर्जी जी, विभाग संयोजक सुनील गुप्ता जी, सुरजीत सरकार जी, मंच का संचालन कर रही श्रीमती श्रावस्ती बनर्जी जी, हमारे 5 मंडल अध्यक्ष श्री बाजारी मंडल जी, अर्पण नाग जी, श्यामचंद महतो जी, श्रीमती उषा पाल जी, श्री दिलीप मंडल जी, ओबीसी महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती रश्मि डे जी, विधानसभा संयोजक श्री सुब्रांशु चौधरी जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमृतलाल घोष जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष अष्टम मंडल जी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील मुर्मू जी, रामपुर हाट से बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ध्रुव साहा जी, हासन विधानसभा क्षेत्र से श्री निखिल बनर्जी जी, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित इस दोनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित उत्साही बहनों और भाइयों, बंगाल की भूमि प्राचीन काल से ही पूरे भारत के लिए प्रेरणा भूमि रही है, और आज ये मेरा सौभाग्य है जिस वीर भूमि के वीरों ने, वीरांगनाओं ने
भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस पावन वीर भूमि की धरा को आज मुझे नमन करने और आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि वीर भूमि वही भूमि है जिस भूमि के वीर सपूत श्री राजेश ओरांग, जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, उस वीर भूमि को कौन भारतीय नमन न करता हो। और इतिहास उठा करके देखिए, ये भूमि है अध्यात्म के उच्च कोटि के साधक हो, या फिर इस भूमि ने रामकृष्ण परमहंस बंगाल की भूमि ने दिए, बंगाल की भूमि ने स्वामी प्रणवानंद जैसा सन्यासी दिया, और बंगाल की भूमि ने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी देकर के पूरी दुनिया के अंदर शंखनाद किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की भूमि है जहां पर खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं। ये वही बंगाल की भूमि है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को दिए, जिन्होंने उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की भूमि में पैदा होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्घोष था। बहनों और भाइयों, यही बंगाल की भूमि है जिस बंगाल की भूमि में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा होकर के भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, और हर भाजपा का कार्यकर्ता एक ही उद्घोष करता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये भाजपा का कार्यकर्ता नारा लगाता था। और आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है, कश्मीर में धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज समाप्त हो चुकी है। अब कश्मीर में वही कानून लागू होता है जो बंगाल, बिहार और यूपी में लागू होता है। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि परम आध्यात्मिक और शक्ति पीठों से जुड़े हुए इस वीर भूमि को आप सबके माध्यम से प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत का गौरव है। बंगाल ने भारत को दिशा दी है। बंगाल के अंदर वहां का किसान, यहां का नौजवान, यहां की बहनें अपने परिश्रम से बंगाल को कभी भारत का ग्रोथ इंजन बनाई थी। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और
सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। और इसीलिए तो जब टीएमसी की बात आती है तो बहनों और भाइयों, ये टीएमसी टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब करप्शन का पर्याय बनकर के रह गई है। याद करिए, मोदी जी बंगाल के विकास के लिए यहां के गरीबों, दलितों, वंचितों, जनजातीय समुदाय के लिए जो धनराशि भेजते हैं, वह पैसा टीएमसी के गुंडे चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2017 के पहले इसी प्रकार की बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां विकास ठप था, अपराध चरम पर था, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को कुछ नहीं मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, वहां पर अराजकता चरम पर थी। और जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार यूपी में आई, आज यूपी का नक्शा बदल गया है। आज यूपी बदल गया है बहनों और भाइयों, आज यूपी बदल गया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज यूपी में सब चंगा है। यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, और यूपी ऐसा राज्य है जहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। माफिया मुक्त यूपी, गुंडा मुक्त यूपी। और माफिया और गुंडों का इलाज क्या होता है? ये बुलडोजर जब चलता है सड़कों पर तो माफिया की हड्डी पसली को भी एक करके ठीक करता है, उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है, और गरीबों के लिए वहां आवास बनाए जाते हैं, गरीबों को आवास दिए जाते हैं, जनजाति लोगों को आवास बनाए जाते हैं। बहनों और भाइयों, आपसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप सब इस चुनावी सभा के लिए भी आपको परेशान होना पड़ा था। इस सभा के लिए जब श्री दुर्बसार बीजेपी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षगण जब मेहनत कर रहे थे, टीएमसी के गुंडे धमका रहे थे। जो लोग इस चुनावी सभा में आ रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी, फतवे पढ़े जा रहे थे। घबराइए मत, 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने दीजिए। ये जो गुंडे हैं, ये जो माफिया हैं, जो धमकी दे रहे हैं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आने पर आपके स्वागत के लिए झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे सड़कों पर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, किसी माफिया के दबाव में मत आइए, किसी गुंडे के दबाव में भी मत आइए, किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। याद करना, इन सब की अराजकता का केवल और केवल इलाज है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। एक गरीब को मकान मिले, एक गरीब को आवास मिले,
लाभ मिले, एक गरीब को उपचार की फ्री में सुविधा प्राप्त हो, एक किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो, एक नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी हो, हर बेटी को सुरक्षा मिले और हर बहन स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो। यह काम केवल और केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार। बंगाल को तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा यहां पर इसको लूटा गया है। किसान बदहाल है। यहां पर धान की उपज लगातार घट रही है। मछली उत्पादन घट रहा है। नौजवान की नौकरी समाप्त हो गई है। कोयला उद्योग में कोल माफिया हावी हो गया है। यहां पर खनन के कार्यों में सैंड माफिया हावी हो गया है। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। बीजेपी आएगी, कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया की प्रॉपर्टी को भी कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरण करने का कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी ओर न गौ माता को कटने देंगे और न हिंदुओं को बंटने देंगे। याद करिए ना, ममता दीदी तो अब प्रोटोकॉल भी भूल गई है। भारत के अंदर पहली बार एक जनजातीय समुदाय की बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठती है। और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री नहीं गई। कोई मंत्री नहीं गया स्वागत के लिए। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य का राज्यपाल और उस राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का प्रभारी मंत्री स्वागत के लिए खड़ा होता है। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल के दौरे पर आई, तो ममता दीदी वह प्रोटोकॉल भी भूल गई। याद करिए, ये बंगाल की भूमि भारत की कल्चरल भूमि रही है। कल्चरल कैपिटल के रूप में बंगाल को पहचान मिली थी। आज बंगाल में प्रोटोकॉल बुला करके इसको क्राइम कैपिटल के रूप में ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने बदल दिया है। और बहनों और भाइयों, यही है पहचान का संकट आज बंगाल के नौजवानों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने। सुरक्षा का वातावरण न होने के नाते हजारों उद्योग बंद हो गए हैं। नौजवान रोजगार से वंचित है। किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा है। सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग परेशान हैं। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, टीएमसी के गुंडे डकार जाते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज देखें ना यूपी में 17 के पहले कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर डंडे बरसते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। और आज डबल इंजन की सरकार आई तो दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या की धरती पे बन करके खड़ा हो गया। ये राम मंदिर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक है।
और राष्ट्र गौरव का यह प्रतीक इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। हम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल के अंदर लाएं, बंगाल को फिर से भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में स्थापित करें, बंगाल को फिर से दुर्गा उत्सव और मां काली की भूमि के रूप में, मां तारा की भूमि के रूप में बंगाल को उसकी पहचान दें। बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यहां के गरीबों का उत्थान होना चाहिए, और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने आपके बीच में प्रत्याशी उतारे हैं। रामपुर हाट से श्री ध्रुव साहा को और हासन विधानसभा क्षेत्र से निखिल बनर्जी को। बहनों और भाइयों, ये दो प्रत्याशी यहां पर वीरभूमि जनपद में रामपुर हाट और हासन से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। पीछे सड़क में भी लोग पीछे खड़े हैं, ऊपर भी हैं, बुलडोजर के ऊपर भी हैं, घर के ऊपर भी हैं। दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप बोलेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा, पलटानो दोरकार चाई, पलटानो दोरकार चाई बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार चाई बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, तारा माई की, तारा माई की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।